Assalamu alaikum everyone. So it is 5:05 and we are ready to begin. First of all, welcome to the webinar, How does Science Communication Go Beyond the Classroom? I would like to start by introducing myself. I am Umam Khalid and I've been working with LUMSEX for the past 2 years in the capacity of live online learning lead and an instructional designer. So before we move any further, I would like to do a quick introduction of LUMSX. LUMSX जो है वो LUMS का digital learning center है. And we mainly work in three domains: teacher training, personal and professional development, and data science and IT. Our research team identifies gaps जो local market में exist कर रहे होते हैं, and through our learning products, we try to fill those gaps. So हमारे learning products include asynchronous online courses जो कि self-paced होते हैं. You can take them from anywhere, anytime. Sync courses जिसका vertical मैं lead करती हूँ, उसमें हम live sessions कराते हैं जिस तरह ये webinar है, and some workshops. And we also have hybrid and cohort-based courses and open courseware online trainings and workshops, which are open courseware जो है वो it's free for everybody. So what we do with each of our learning product is कि हम कोशिश करते हैं कि हम local पाकिस्तानी audience को और South Asian audience को cater करें by doing three things. एक तो हम contextualize content using पाकिस्तान और उसकी industry की examples वो utilize करते हैं. We use bilingual modality of language, English और उर्दू दोनों में कोड स्विचिंग हो रही होती है हमारे कोर्सेज में. एंड हमारे जो सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स हैं, वी ट्राई टू cater to people who are experts in the industry. तो उनका सिर्फ academic experience ना हो बल्कि industry experience भी हो. That is of great value to us. So to sum it up, like, our mission is to ensure that we make education accessible to the masses of Pakistan by removing barriers of demographics and gender and limitations of geography. So once again, I would like to welcome to this webinar, which we are conducting in collaboration with Science Fuse. So if you're anyone who's interested in teaching and learning science, you're in for a treat. So आज के session में we will dive into the fascinating world of science engagement, किस तरह से होती है, examining how we interact with science in our day-to-day lives without often even realizing it. And we also explore the role of effective science communication that makes complex ideas very accessible and engaging using a few examples. And this is not the last thing. We also believe that active participation is the actual key to truly understanding and communicating science. So we have a few exciting announcements at the end of the session. So please stay tuned for that. And without giving too much away about the webinar, I would now like to invite our very talented and driven science communicator, Lala Ruh Fazlur Rahman, who is the founder and CEO at Science Fuse. So Lala, please tell us, our wonderful audience, a little about yourself and your work in STEM, after which we will dive right into this webinar. Thank you, Umam. बहुत शुक्रिया. Very excited, very happy to see all of you here. मेरा नाम जैसे उमम ने बताया काफ़ी लंबा है बट लाला इज़ फाइन. लाला रुख मेरा नाम है और मैं एक सोशल एंटरप्राइज साइंस फ्यूज़ की फाउंडर हूँ. मैं पिछले तकरीबन 15 सालों से साइंस या स्टेम एजुकेशन की फील्ड में काम कर रही हूँ. I've been a science communicator for the last 15 years now, which means that I've been inside classrooms, but not just classrooms actually. I've been communicating science at festivals, even, hospitals, बागों में, बहुत मुख्तलिफ जगहों पे हमने बर्थडे पार्टीज़ में भी साइंस को हम लेकर गए हैं और हमने साइंस को बहुत मुख्तलिफ जगहों पर पहुंचाया है. मेरे अपने सफ़र की शुरुआत कुछ इस तरह से हुई थी कि आई डिड बायोटेक्नोलॉजी फ्रॉम द नॉर्वेजियन यूनिवर्सिटी ऑफ लाइफ साइंसेज. देन आई वर्कड विद द सोशल एंटरप्राइज इन नॉर्वे जिनका नाम फॉस्कर फाब्रिकन है. वहाँ पे मैंने 5 साल काम किया और वहाँ पे भी यही प्रॉब्लम को हम सॉल्व करने की कोशिश कर रहे थे कि कैसे यंग लोगों को साइंस की तरफ लाया जाए. हाउ कैन मोर यंग पीपल चूज साइंस, क्योंकि नॉर्वे जैसे मुल्क में भी ये एक बहुत बड़ा मसला है. Then for a while I worked at the Science Museum in London. और इसी ट्रांजिशन के दौरान from moving from Norway to the UK,
I ended up moving to Pakistan. So I grew up in Pakistan, लेकिन मैं काफ़ी अरसा पाकिस्तान से बाहर रही, मगर फिर मैंने पाकिस्तान आने का फ़ैसला किया और मैंने साइंस फ्यूज़ की बुनियाद रखी। और आज इस वेबिनार पे आप सबसे मुलाकात हो रही है, एंड आई थिंक आई विल जस्ट कंटिन्यू नाउ. If you face any difficulties, any technical problems, please feel free to type your issues or concerns in the chat box, and I'm sure Sameen and Umam will help you out. अच्छा, इससे पहले कि हम आगे जाएं, मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूँगी कि साइंस फ्यूज़ क्या करता है। तो हम पाकिस्तान का या पाकिस्तान के बच्चों और यंग लोगों का साइंस सरमाया नर्चर कर रहे हैं। हम उनका साइंस के साथ कर रहे हैं, और ये काम हम मुख्तलिफ तरीक़ों से करते हैं। हम ऐसे साइंस के प्रोग्राम्स डिज़ाइन करते हैं जिनमें बच्चे छोटे-छोटे तजुर्बात करके साइंस को सीखते हैं, और ना सिर्फ साइंस के बारे में नॉलेज हासिल करते हैं, बल्कि जो साइंस स्किल्स सिखाती है, वो स्किल्स भी वो सीखते हैं। ये स्किल्स जो हैं, ये साइंस इंक्वायरी स्किल्स कहलाते हैं, एंड नॉट मेनी पीपल नो कि ये जो स्किल्स हैं, ये ट्रांसफरेबल होते हैं। इसलिए बड़ा अहम है कि बेशक आप बड़े होके साइंसदान ना बने, लेकिन आप जो भी काम करेंगे या करेंगी, आपको वो स्किल्स ज़रूर चाहिए होंगे, वो आपके काम आएँगे, दे आर ट्रांसफरेबल। सो वी ट्राई कि हमारे प्रोग्राम्स के थ्रू वो स्किल्स भी बच्चे सीखें। ये प्रोग्राम्स हम स्कूलों में, जैसे मैंने बताया, लेके जाते हैं, हॉस्पिटल्स में लेके जाते हैं, ऑर्फनेजेस में लेके जाते हैं, फेस्टिवल्स में लेके जाते हैं। इसके अलावा हम साइंस की ऐसी किताबें भी बनाते हैं जिनमें साइंस कहानियों के थ्रू, एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू कम्युनिकेट की जाती है। हमारी साइंस की एक बड़ी कूल सी गाड़ी भी है, जो कि स्कूलों में जाती है, कम्युनिटीज़ में जाती है। और ये सब कुछ हम जब कर रहे होते हैं, आपको यहाँ पे कुछ तस्वीर नज़र आ रही हैं जिनमें शायद झलक दिख रही है हमारे काम की। ये सब कुछ जब हम करते हैं तो हम चाहते हैं कि लर्निंग एंड टीचिंग साइंस शुड बिकम जॉयफुल फॉर चिल्ड्रन। दे शुड क्रिएट दोज मेमोरेबल मेमोरीज, बहुत खूबसूरत उनकी यादें बने कि जब हम साइंस के बारे में सुन रहे थे, पढ़ रहे थे, तो कितना अच्छा महसूस हो रहा था। और अगर ये मौके बच्चों को ज़िंदगी भर मिलते जाएं, बार बार मिलते जाएं, तो उनका साइंस का सरमाया बढ़ता जाता है। उनका कॉन्फिडेंस साइंस के साथ इंगेज करने में बढ़ता जाता है। और जब ये कॉन्फिडेंस बढ़ता है कि हाँ, मैं भी साइंस कर सकती हूँ या मैं भी कर सकता हूँ, तो फिर क्या होता है कि हम कहते हैं कि इससे उनका साइंस सरमाया बढ़ रहा है। उनके साइंस के स्किल्स बढ़ रहे हैं, साइंस की नॉलेज बढ़ रही है, और साइंस में अच्छा करने की का एतमाद और कॉन्फिडेंस भी बढ़ रहा है। तो होलिस्टिकली जो साइंस सरमाया है, ये एक रिसर्च बेस्ड कॉन्सेप्ट है, जिसकी रिसर्च यूके में शुरू हुई, और हम इस रिसर्च को इस्तेमाल करते हैं अपने प्रोग्राम्स, अपनी किताबें, अपनी कहानियाँ, ये सब शेप अप करने के लिए। और जब फिर हम ये प्रोग्राम्स लेकर जाते हैं बच्चों तक, असातिज़ा तक, स्कूलों तक, तो फिर हमारा मकसद यही होता है इनका साइंस सरमाया बढ़े, और उससे फिर इनकी स्टेम एस्पिरेशंस बढ़ेंगी, ज़्यादा से ज़्यादा यंग लोग साइंस को अपनाएंगे, स्टेम के करियर्स में जाएंगे, या स्टेम के स्किल्स को डिफरेंट करियर्स में इस्तेमाल कर सकेंगे। और इससे क्या होगा, इससे उनकी ज़िंदगी में बहुत अपॉर्च्युनिटीज़ जो हैं वो ओपन अप होंगी, एंड इट विल इम्प्रूव देयर लाइव्स, एंड इट विल allow them to find solutions to the problems of their communities, which is the end goal, कि पाकिस्तान में बच्चे जो हैं वो अपने लिए भी बहुत सारे दरवाजे खोल सकें और अपनी कम्युनिटीज़ को भी हेल्प कर सकें। जस्ट अ फ्यू वेरी पोलाइट रिमाइंडर्स कि आज का जो ये वेबिनार है, इसमें मैं चाहूँगी कि आप लोग बिल्कुल खुल के इंटरैक्ट करें, क्योंकि मैं इस वेबिनार में सिर्फ मैं नहीं बात कर रही होंगी, बल्कि कुछ पॉइंट्स आएंगे जहां मैं आपसे सवाल जवाब करना चाहूँगी, और मैं आपके आइडियाज़ और आपका पर्सपेक्टिव और आपके एक्सपीरियंसेस के बारे में जानना चाहूँगी। तो प्लीज़ यूज़ द चैट बॉक्स, अपने जवाबात वहाँ लिखिए। अपनी वीडियो अगर आप ऑन कर सकते हैं तो ज़रूर करें। मुझे लगेगा कि मैं अपने आप से नहीं बात कर रही, बट एक्चुअली यहाँ पे और लोग हैं और आपके तासुरात मुझे नज़र आएंगे। एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि जब हम बात कर रहे हों तो हम रिस्पेक्टफुल हों। अगर हम किसी से डिसएग्री करते हैं तो दैट्स ओके, बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम रिस्पेक्टफुल रहें। एंड में एक क्वेश्चन एंड आंसर सीरीज भी होगा, तो उसमें फिर आपको मौका मिलेगा कि आप और भरपूर तरीके से सवालात कर सकें, एंड होपफुली विल बी एबल टू आंसर योर क्वेश्चंस। अगर किसी चीज़ का जवाब मेरे पास ना हुआ तो हम बाद में ज़रूर आपसे राब्ता करके उस सवाल का जवाब आप तक पहुंचा देंगे। अच्छा, विल स्टार्ट विद अ क्वेश्चन, एक छोटी सी रिफ्लेक्शन। आप सब एक वक्त में छोटे थे, अब बड़े हो गए हैं, लेकिन मैं चाहूंगी कि अगर आप जरा
थोड़ा सा अपना माइंड जो है पीछे की तरफ लेके जाएं, व्हेन यू वर यंगर और इवन यंगर, और सोचें कोई ऐसे दो वाकयात, कोई ऐसे दो इंस्टेंसेस, अगर दो नहीं तो चलें एक ही, जब आपको लगा हो कि आपने साइंस के साथ इंटरेक्ट किया या आपका साइंस के साथ आमना सामना हुआ और वो इंटरेक्शन इतनी मेमोरेबल है कि अभी तक आपको याद है। अब जरूरी नहीं कि आप बहुत पास्ट में ही जाएं, हो सकता है कुछ रीसेंट टाइम्स में, कल परसों ही साइंस से मुलाकात हुई हो, तो वो भी ठीक है। तो बचपन में, स्कूल में, स्कूल के दिनों से, या अभी आपके रीसेंट टाइम्स में से, आजकल में ही साइंस के साथ कोई तजुर्बा, कोई मुलाकात, कोई एंगेजमेंट हुई हो जिसने आपके दिमाग पर असर छोड़ा हो, जिससे आपको खुशी महसूस हुई हो, जिसे आपने इंजॉय किया हो, या आपने कुछ सीखा हो, तो प्लीज शेयर इट। मैं अपने ज़रूर शेयर करूंगी। आगे आने वाली स्लाइड्स में मैं आपके साथ कुछ तस्वीर, कुछ एक्सपीरियंसेस शेयर करूंगी जो मेरे साइंस के साथ रहे हैं बचपन से भी और अभी कुछ चंद महीने पहले भी। लेकिन आपके अगर कोई एक्सपीरियंसेस हैं, आई एम श्योर होंगे, सबके हैं, क्योंकि साइंस के साथ तो हर कोई इंगेज करता है। ये तो हो ही नहीं सकता कि हमने साइंस के साथ हमारा पाला ना पड़ा हो। तो प्लीज शेयर करें, फील फ्री टू टाइप इन द चैट बॉक्स। आई विल पॉज फॉर अ फ्यू सेकेंड्स क्योंकि मैं आप लोगों से सुनना चाहूंगी। हम्म। आपकी साइंस के साथ मुलाकात जरूरी नहीं किसी लैब में ही हुई हो, ये भी जरूरी नहीं कि किसी क्लासरूम में ही हुई हो। हम्म, कहीं पे भी आपका पाला साइंस से पड़ा है तो प्लीज मेरे साथ शेयर करें कि कैसे पाला पड़ा और उस एक्सपीरियंस ने आप पर क्या असर छोड़ा। We have started getting a few responses in our chat. यस, थैंक यू उमम, बहुत शुक्रिया, क्योंकि मुझे नोटिफिकेशन नहीं आ रही थी। ओ अच्छा जी, तो रेबा कह रही हैं रबिंग बलून ऑन आवर हेड्स एंड स्टिकिंग देम टू द वॉल। रेबा, दैट्स वेरी नाइस। आई होप कि ये आप सिर्फ बचपन में नहीं, अभी बड़े होके भी आप ऐसे करती होंगी। दैट साउंड्स रियली इनक्रेडिबल, लॉट ऑफ फन। वोल्केनो एक्सपेरिमेंट, ये किसने नहीं किया? नायाब, थैंक यू फॉर शेयरिंग। समर कह रहे हैं कि इट अमेज्ड हिम टू लर्न कि बिल्लियों की आंखें जो हैं, कैट आईज, सोलर सेल्स, इनके बारे में जानना, बायोमिमिक्री, और साइंसदान जो पता लगा रहे हैं कि नेचर कैसे काम करती है। थैंक यू फॉर शेयरिंग। सारा कह रही हैं यूजिंग मैग्नीफाइंग ग्लास टू बर्न पेपर इन सन। ऑसम सारा, आई होप यू स्टेइंग सेफ एट द सेम टाइम, कि जब हम इस तरह के एक्सपेरिमेंट्स करते हैं तो सेफ्टी इज वेरी इंपॉर्टेंट। सादिया कह रही हैं ओ कोरिएंडर, उन्होंने कोरिएंडर प्लांट्स ग्रो किए ड्यूरिंग अ वर्कशॉप इन 5 days टाइम। दैट्स द बेस्ट वे टू एंगेज विद साइंस, है ना, थ्रू वेरी वेरी सिंपल थिंग्स लाइक ग्रोइंग कोरिएंडर। और कोरिएंडर कितना इस्तेमाल होता है हमारे खाने में। दैट्स वंडरफुल सादिया। टिंगलिंग फेल्ट व्हेन आई फोल्डेड द ब्लैंकेट्स, नगमाना कह रही हैं जबरदस्त। अस्मा कह रही हैं मैं एक साइंस टीचर हूँ और मैं वेल बीइंग अ साइंस टीचर डेली बेसिस पे साइंस से उनकी मुलाकात होती है और प्लांट्स के बारे में ज़्यादा जाना, तो दैट वाज अ वंडरफुल एक्सपीरियंस। डिफ्लेक्टिंग वाटर बीम यूजिंग इलेक्ट्रोस्टैटिक साउंड्स वेरी वेरी। ताहिरा कह रही हैं getting small electric shocks near metal stairs and door knobs. Yes, not very comfortable, but yes, बहुत ठीक बात कह रही है मारूख। और उन्होंने एक्सप्लेन भी किया है कि स्टैटिक चार्जेस कैसे फ्लो करते हैं और शॉक कर देते हैं हमें। फरीदा कह रही हैं कि उन्होंने बेकिंग सोडा और विनेगर को इस्तेमाल करके एक बलून फुलाया है, और फिर उन्होंने सोलर अवन भी बनाया है। हारून कह रहे हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन इन क्लीन वाटर। नमल इज सेइंग फ्रिक्शन बिटवीन योर स्किन एंड द ब्लैंकेट। अभी तो ब्लैंकेट का मौसम नहीं आया, तो शायद पिछली सर्दियों में आपने ये एक्सपीरियंस किया होगा, या हर साल सर्दियों में करती ही होंगी। बशीर कह रहे हैं प्लांटेड ऑर्गेनिक मैटर टू प्रोड्यूस प्लांट्स। फिजा कह रही हैं कि लाइट लाइट द बल्ब विद मैग्नेटिक एंड सॉल्ट वाटर। अच्छा, आपके जवाबात से लग रहा है कि आप सब जो लोग हैं, या ज्यादातर जो लोग यहाँ पे आज जिन्होंने हमें ज्वाइन किया है, आपका साइंस से कुछ बहुत ही गहरा ताल्लुक है। तो या तो आप लोग साइंस टीचर्स हैं ज्यादा ज्यादा, ज्यादातर आप में से, या फिर साइंस के स्टूडेंट्स हैं खुद। एंड इट्स वेरी हार्ट वार्मिंग टू सी कि सो मेनी ऑफ यू हैव जॉइन टुडेज वेबिनार। और बहुत सारे आपके जो ये साइंस के साथ इंटरेक्शंस हैं, ये बड़े लग रहे हैं कि उस तरह के इंगेजमेंट्स हैं जो टिपिकली ये क्लासरूम में, लैब में हो रहे होते हैं। लेकिन कुछ लोगों ने ऐसी मिसालें भी दी हैं
जो कि थोड़ा लैब से हटके और स्कूल या क्लासरूम एनवायरनमेंट से हटके हैं। बिल्कुल ठीक, सारा कह रही है कि प्रिज्म से भाई रेनबोज बनाए बनाए हैं, ये भी एक साइंस के साथ उनका मेमोरेबल एक्सपीरियंस रहा है। इरम ने बहुत अच्छी मिसाल दी है, उन्होंने वैक्यूम क्लीनर ही जला डाला सफाई करते करते, एंड दैट आल्सो इज एन एक्सपीरियंस विद साइंस, मे बी नॉट अ वेरी हैप्पी और मेमोरेबल वन, मेमोरेबल फॉर श्योर बट मे बी नॉट सो हैप्पी। अच्छा जी, मैं आपके साथ कुछ अपने साइंस के साथ जो इंगेज करने के एक्सपीरियंसेस हैं वो शेयर करूंगी। मेरे एक्सपीरियंसेस में आप देखेंगे कि दो चीजों पे हम गौर करेंगे। एक कि साइंस मेरे तक पहुंची कैसे, कैसे कम्युनिकेट की जा रही थी मुझे, और मैं उसकी कंज्यूमर थी क्योंकि मैं उसके साथ इंगेज कर रही थी। अब ये जो पोस्टर आपको दीवार पे नहीं है, सामने मेरी स्क्रीन पे, आप अपनी स्क्रीन पे नजर आ रहा है, इसमें एक साइंटिस्ट हैं, इनका नाम रोजलिन फ्रैंकलिन है। ये एक बायोफिजिसिस्ट हैं, शायद कुछ लोगों को पता भी हो ऑलरेडी कि इन्होंने एक बहुत कमाल डिस्कवरी की थी। ये वो पहली खातून है या पहली इंसान है दुनिया में जिन्होंने डीएनए के मॉलिक्यूल की तस्वीर ली थी अपने कैमरा से, एक स्पेशल किस्म का कैमरा। मॉलिक्यूल्स की तस्वीर हम आम कैमरे से तो नहीं ले सकते। अम, इनकी ये जो डिस्कवरी थी वो इतनी अहम थी कि उस वक्त, उस जमाने में, ये 1920 से 1958 तक जिंदा थी। बहरहाल जब इन्होंने ये तस्वीर ली थी तो दो साइंसदान थे, वाटसन एंड क्रिक, जो उस वक्त डीएनए के स्ट्रक्चर के ऊपर काम कर रहे थे। उनको ये तस्वीर मिल गई थी और उन्होंने इनकी तस्वीर इस्तेमाल करके अपना वो मॉडल जो है डीएनए का, वो पूरा कर लिया था, एंड दे वॉन द नोबेल प्राइज फॉर इट, एंड दैट डिस्कवरी चेंज द वर्ल्ड फॉर एवर। डीएनए जिनको ना पता हो, डीएनए जो है वो हम सबके अंदर होता है, सारी लिविंग थिंग्स के अंदर होता है, प्लांट्स के अंदर भी होता है, एक प्याज के अंदर भी होता है, एक बनाना के अंदर भी होता है, एक बिल्ली के अंदर भी होता है, और हम इंसानों के अंदर भी होता है। ये हमें बताता है, ये हमें गवर्न करता है। डीएनए की वजह से ही मेरी आंखों का रंग, मेरे बालों का रंग और मेरी बॉडी ने कैसे फंक्शन करना है, ये डीएनए बताता है। अब ये पोस्टर मुझे कहाँ नजर आया? ये मुझे लंदन की चलते चलते एक सड़क पे नजर आया। एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी थी, किंग्स कॉलेज लंदन, और मैं उसके करीब से गुजर रही थी और बाहर ये पोस्टर था। और ये बहुत बड़ा सा पोस्टर था एक दीवार पे, और सिर्फ एक नहीं बल्कि कुछ और पोस्टर्स भी थे कुछ और साइंसदानों के। तो ये चंद महीने पहले ये पोस्टर जो है मुझे नजर आया था दीवार पे, और मैं रुकी और मैंने इसकी तस्वीर ली, और मैंने रोजलिन फ्रैंकलिन के बारे में मैं पहले से जानती थी, तो मुझे देख के बहुत खुशी हुई, तस्वीर ली बकायदा, और फिर मैंने वो तस्वीर रख ली। और आज जब मैं वेबिनार की तैयारी कर रही थी तो मैंने ये तस्वीर आप लोगों के लिए निकाली। फिर एक और दफा मैं एक जगह पर थी लंदन में, तो वहां मुझे ये पोस्टर नजर आया जो पूछ रहा था एक सवाल कि ये साइंसदान जो है दुनिया को कैसे बदल रहे हैं। अब आप देखिए कि ये पोस्टर कहाँ है, ये एक पब्लिक स्पेस में है, यानी इसको हर कोई देख सकता है। ये सिर्फ साइंसदानों के लिए नहीं है, ये किसी स्कूल या यूनिवर्सिटी में नहीं है, ये एक बड़ी पब्लिक स्पेस है जहाँ कोई भी आ रहा है जा रहा है, और वहां पे ये एक सवाल है जो पोज किया गया है। और इस सवाल के साथ, इस पोस्टर के साथ बहुत सारे और पोस्टर्स थे जहाँ मुख्तलिफ साइंसदानों की तस्वीर थी, और उन तस्वीर में दिखाया जा रहा था कि वो अपना काम कैसे कर रहे हैं या कर रही हैं, और साथ दो या तीन लाइंस थी कि उनके काम के बारे में। उनमें से एक ये साहिबा हैं, एक पोस्टर तो उनमें से पीछे है, द कलरिस्ट, ये एक बायोटेक्नोलॉजिस्ट हैं, इनका नाम सारा है। और ये क्या करती हैं कि ये पता लगाती हैं कि जो ऑर्नामेंटल फ्लावर्स होते हैं इनके अंदर जो कलर्स होते हैं ये कहाँ से आते हैं और कैसे बनते हैं। सो यू कैन सी सारा's फोटो, एंड देन देयर इज अनदर वन। ये एक वॉच मेकर हैं, और इनके लिए जो टाइटल इन्होंने इस्तेमाल किया है वो है टाइम कीपर। और ये क्या करती हैं कि ये विंटेज जो पुरानी वॉचेस हैं उनको रिस्टोर करती हैं कुछ टेक्निक्स इस्तेमाल करके। तो यानी ये घड़ियों के साथ काम करती हैं, ये भी एक साइंसदान है, क्योंकि ये भी इसी सवाल के साथ ही इनकी तस्वीर थी कि हाउ आर साइंटिस्ट चेंजिंग द वर्ल्ड। तो उसमें इनकी तस्वीर भी थी और एक ऐसी साहिबा की तस्वीर भी थी जो कि प्लांट्स के अंदर ये पता लगा रही हैं कि कलर्स कैसे आते हैं। तो एक तो मैं बड़ी इंट्रीग हुई कि मुख्तलिफ किस्म के लोग जो हैं वो इस सीरीज में साइंसदान कहलाए जा रहे हैं। और मैंने देखा था कि कोई 10-15 वहाँ पे तस्वीर लगी हुई थी, सारी तो मेरी स्लाइड्स में मौजूद नहीं है। और वो मुख्तलिफ लोग थे, उनमें ब्लैक कम्युनिटी के भी लोग थे, एशियन कम्युनिटी के भी लोग थे, कोई ऐसी खातून भी थी जिन्होंने हिजाब पहना हुआ था,
फिर ऐसे भी लोग थे जो जानवरों के साथ काम कर रहे हैं, लैब के अंदर काम कर रहे हैं, किसी फॉरेस्ट में काम कर रहे हैं। ये तो थी चंद महीने पहले जो मेरी साइंस के साथ मुलाकात हुई सड़क पे चलते चलते। मैंने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था कि मैं घर से निकली हूँ, मैं तो किसी दोस्त से मिलने जा रही थी और रास्ते में साइंस मिल गई। अब एक और मैं आपको वाकया सुनाऊंगी अपने बचपन का, जब भी मुझे साइंस के साथ मेरी मुलाकात हुई थी, और वो मुलाकात इतनी स्ट्रांग थी, इतनी इम्पोर्टेंट थी मेरी जिंदगी में कि उसने मेरी जिंदगी का रुख ही बदल दिया। मैं शायद 12 साल की थी और डॉन न्यूज़पेपर के अंदर एक मैगजीन आता है यंग वर्ल्ड, उसमें एक आर्टिकल छपा फार्माकोजिनोमिक्स के बारे में। जी हाँ, बच्चों के मैगजीन में इतना मोटा सा लफ्ज था फार्माकोजिनोमिक्स। और मैंने उसको पढ़ा और उसमें लिखा था कि बहुत स्पेशल किस्म के डॉक्टर्स होते हैं जो क्या करेंगे, अभी नहीं है, आगे फ्यूचर में होंगे। और वो डॉक्टर्स ऐसे होंगे कि जब आप उनके पास जाएंगे वो आपका ब्लड टेस्ट लेंगे, वो आपके डीएनए को देखेंगे और आपको पर्सनलाइज मेडिसिन देंगे, क्योंकि अभी जो दवाइयां मिलती हैं वो पर्सनलाइज नहीं होती, इसलिए वो आप पे सब पे एक जैसा असर नहीं करती। और फ्यूचर में एक वक्त आएगा कि आपके डीएनए के मुताबिक आपको दवाइयां मिलेंगी एंड बिल्कुल दुनिया बदल जाएगी। मैं 12 साल की थी, मैंने उस आर्टिकल को काटा और मैंने अपनी दीवार पे लगा लिया और मैंने सोचा वाह। मेरे माँ बाप कहते हैं कि डॉक्टर बन जाओ जिंदगी संवर जाएगी। आपको पता है पाकिस्तान में ज्यादातर माँ बाप चाहते हैं उनके बच्चे डॉक्टर बन जाए। मेरी अम्मा चाहती थी मैं डॉक्टर बन जाऊं, डॉक्टर नहीं बनी, फिर उन्होंने सोचा कि मैं डॉक्टर से शादी कर लूं, वो भी नहीं हुआ, तो डबल डिसअपॉइंटमेंट। मैंने जब ये आर्टिकल पढ़ा था तो मैंने सोचा ये तो कोई और ही लेवल के डॉक्टर हैं जो कि मतलब सिर्फ दवाई नहीं देते बल्कि वो दवाइयां बनाते हैं डीएनए के हिसाब से। उसके बाद आई वॉज ओनली 12, लेकिन उसका इतना असर हुआ उस आर्टिकल का कि आई बिकेम ऑब्सेस्ड विद जेनेटिक्स। ये वो टाइम था जब ह्यूमन जीनोम भी सीक्वेंस हो रहा था, अखबारों में बहुत लिखा जाता था जीन्स के बारे में, जेनेटिक्स के बारे में। इतना असर छोड़ा मेरे पर इसने कि मैंने सोचा कि बड़े होके मैं भी जेनेटिक्स में ही कुछ करूंगी। एंड सो इट लिटरली चेंज्ड माय लाइफ बिकॉज व्हेन आई वेंट टू यूनिवर्सिटी आई स्टडीड मोलेक्युलर बायोलॉजी। और यहाँ से मेरा साइंस के साथ एक रिश्ता बन गया जो आज तक कायम है। अब मैं दोबारा पीछे जाऊंगी थोड़ा सा और चाहूंगी कि आप लोग दोबारा इन तस्वीर को देखें, एक दफा जरा नजर दोहराएं। और यहाँ पे एक सवाल है कि जब आप साइंस इंगेजमेंट का लफ्ज, ये लफ्ज मैंने इस्तेमाल किया है शायद बातों बातों में, उमम ने भी जिक्र किया, जब हम ये लफ्ज यूज करते हैं साइंस इंगेजमेंट, तो आपके दिमाग में क्या आता है? और ये साइंस इंगेजमेंट्स कौन लोग हैं जो तैयार करते हैं, कौन है जो इनके क्यूरेटर्स हैं, कौन तरतीब देता है साइंस इंगेजमेंट्स को? आपने मेरे मेरे दो एक्सपीरियंसेस सुने, बल्कि तीन एक्सपीरियंसेस मैंने शेयर किए। दो जो चलते चलते गली में, रास्ते में मैंने साइंस के साथ इंगेज किया, और एक जो बचपन में। तो थोड़ा सा मुझे बताएं कि साइंस इंगेजमेंट का लफ्ज जब आप सुनते हैं तो किस तरह की चीजें आपके माइंड में आती हैं, एक साइंस इंगेजमेंट क्या होती है? फील फ्री टू टाइप इन द चैट बॉक्स कि एक साइंस इंगेजमेंट को आप कैसे बयान करेंगे। फहद कह रहे हैं नेचर को एक्सप्लोर करना इज अ काइंड ऑफ साइंस एंगेजमेंट। बिल्कुल फहद, दैट्स ट्रू। जब हम बाहर निकलते हैं, दरख्तों को देखते हैं, पहाड़ों में जाते हैं, दैट्स ऑल्सो अ वे ऑफ इंगेजिंग विद साइंस। ट्रू। एंड आई विश कि मोर ऑफ दिस कैन बी डन इन क्लासरूम्स एंड इन स्कूल्स एज अ वे ऑफ टीचिंग साइंस। क्योंकि अगर हम कह रहे हैं कि ये एक साइंस एंगेजमेंट है तो फिर बच्चे साइंस को ऐसे क्यों नहीं सीखते? जबरदस्त। when you come across something scientific in your surroundings, okay, ठीक है, इसके अलावा साइंस इंगेजमेंट यानी कि सीइंग नॉर्मल थिंग्स एंड आस्किंग व्हाई एंड हाउ क्वेश्चंस। ठीक है, आपके इर्द गिर्द जो चीजें हैं उनको देखना, उनके ऊपर सवाल उठाना, क्यूरियोसिटी रखना उनके बारे में, हाईलाइटिंग एंड एलैबोरेटिंग साइंस इन डेली लाइफ एंड एवरीडे चोर्स। ठीक है, बिल्कुल। अभी सारा, माहरुख, बिरयानी का किसी ने जिक्र किया? यस, बशीर ने बिल्कुल सही बात कही है। थैंक यू फॉर शेयरिंग कि इवन आपके घर में अम्मी या अब्बू जब बिरयानी बनाते हैं, दैट इज ऑल्सो अ साइंस इंगेजमेंट। लेकिन होता ये है, या जब कभी बिजली चमकती है वो भी एक साइंस इंगेजमेंट है। होता ये है कि लेकिन साइंस की क्लास में कभी बिरयानी नहीं पकती है ना। ये नहीं हुआ कभी कि साइंस की टीचर भी कहें कि चले आए बिरयानी बनाते हैं एंड लेट 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 मी टीच यू साइंस बाय मेकिंग बिरयानी और बाय बेकिंग कुकीज। ऐसा क्यों नहीं होता?
क्योंकि हमारे स्कूलों में या स्कूलों से बाहर भी साइंस इंगेजमेंट एक डब्बे में कर दी गई है बंद, कि अगर साइंस इंगेजमेंट हो रही है तो फिर मुश्किल से इंस्ट्रूमेंट्स, मुश्किल से अल्फाज होने चाहिए, एक जंग लगा हुआ बंसन बर्नर होना चाहिए, लैब तो जरूर होनी चाहिए। लैब के बगैर साइंस इंगेजमेंट, कैसी बात कर रही हैं आप लाला? अम लेकिन अभी जो आपने बातें की ये तो बड़ी मजेदार हैं, कि बिरयानी बना रहे हैं तो भी साइंस इंगेजमेंट हो रही है, नेचर एक्सप्लोर कर रहे हैं तब भी साइंस इंगेजमेंट हो रही है, पानी फिल्टर हो रहा है ये भी साइंस इंगेजमेंट है। एब्सोल्युटली, कम्युनिटी लेवल पे भी अगर डिफरेंट डिसिप्लिन्स, डिफरेंट काम हो रहे हैं वो भी साइंस इंगेजमेंट हो सकते हैं। मैंने साइंस के साथ कैसे इंगेज किया? एक मैगजीन, एक अखबार के जरिए, या चलते चलते सड़क पे एक पोस्टर के जरिए। ये पोस्टर्स किसने बनाए? किसी साइंसदान ने नहीं बनाए, ये तो एक फोटोग्राफर ने और किसी राइटर ने तरतीब दिए होंगे। ये डॉन में जो मैगजीन में छपा होगा आर्टिकल, किसी की साइंस के बारे में नॉलेज होगी, हो सकता है किसी बच्चे ने सबमिट करवाए हो वो आर्टिकल्स और मैंने पढ़े, एंड दैट इज वन वे दैट आई एंगेज्ड विद साइंस। लेकिन क्योंकि साइंस इंगेजमेंट को एक डब्बे में डाल दिया गया है तो फिर इन चीजों को साइंस इंगेजमेंट नहीं समझा जाता, एंड दैट इज अ बिग प्रॉब्लम। अब मेरा सवाल आपसे यही है, लेकिन आपने ऑलरेडी यहाँ पे काफी हद तक मेरे सवाल का जवाब दे दिया है। हम लोगों ने मिलकर इसी चीज पे गौर किया है कि आखिर व्हाट काउंट्स एज साइंस। नहीं, खबरदार, अम्मी को तो साइंस आती नहीं है। ये कैसे आपने सोच लिया कि अम्मी जैसी इंसान को भी कोई साइंस आती है? जी हाँ, अम्मी जब चाय बनाती हैं या चावल बनाती हैं तो कितना पानी डालना है चावलों में, चाय में कितनी चीनी डालनी है, या कितनी टेम्परेचर पे चाय उबालेंगी तो उबल जाएगी, ये सब कुछ अम्मी को पता है। एंड सो दैट इज अ नॉलेज ऑफ साइंस। जरूरी नहीं कि उनको बर्नौलीज प्रिंसिपल आता हो या उनको बहुत बड़े बड़े इक्वेशंस के नाम आते हो, मगर उनको साइंस की नॉलेज है जिसको वो अप्लाई कर रही हैं इन हर डेली लाइफ। अब यहाँ पर आपको कुछ खवातीन नजर आ रही हैं। एक मेरी जो दोस्त हैं, मरियम इनका नाम है, इन्होंने चूहा पकड़ा हुआ है और इन्होंने ग्लव्स भी पहने हुए हैं और इन्होंने वाइट लैब कोट भी पहना हुआ है। इनको तो कोई नहीं कहेगा कि ये साइंसदान नहीं है, ये तो कहेंगे भाई पक्का साइंसदान है, इन्होंने तो एक चूहा भी पकड़ा हुआ है। She is a scientist and she uses science in her daily life, but she is not the only one who uses science, right? ऊपर टॉप कॉर्नर में आपको मेरी एक और दोस्त नजर आ रही है, पिंक दुपट्टा लिया हुआ है, फील्ड पे है, बड़ा बड़ा सा उन्होंने एक कैमरा और माइक शाइक पकड़ा हुआ है। दिस इज हया फातिमा इकबाल। शी इज अ डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर एंड अवार्ड विनिंग डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर। इनकी फिल्मों ने ऑस्कर जीता हुआ है। तो ये भी साइंस इस्तेमाल करती हैं। इनको पता होना चाहिए एंगल्स के बारे में, इनको लाइट के बारे में पता होना चाहिए, इनको शेडो के बारे में पता होना चाहिए, साउंड के बारे में पता होना चाहिए, इन मशीनों को ऑपरेट कैसे करना है ये पता होना चाहिए। तो शी यूजेस साइंस इन हर डेली लाइफ, इन हर प्रोफेशन एज वेल। अब अगर हया साइंस में अच्छी ना होती तो फिर अच्छी फिल्म मेकर भी ना बनती। ये जो मैंने शुरू में कहा था कि स्टेम स्किल्स आर ट्रांसफरेबल, अगर बच्चों को, असातिज़ा को, स्कूलों को पता होगा कि स्टेम स्किल्स आर ट्रांसफरेबल तो बच्चे साइंस के साथ नाता जल्दी नहीं तोड़ेंगे। जिन लोगों को अवेयरनेस होती है कि साइंस कितनी यूजफुल है, कितनी इंपॉर्टेंट है और कुछ महदूद जगहों पे इस्तेमाल नहीं होती बल्कि हर जगह इस्तेमाल होती है, दे कंटिन्यू इंगेजिंग विद साइंस फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, स्पेशली आफ्टर 16 ईयर्स ऑफ एज, क्योंकि 16 साल तक तो ऑब्लिगेटरी होती है ना, पढ़नी पड़ती है। उसके बाद भी जो बच्चे साइंस के साथ रिश्ता बना लेते हैं या बना पाते हैं, कायम रख पाते हैं, वो जिंदगी में ज्यादा कामयाब होते हैं, वो ज्यादा कामयाबी हासिल कर सकते हैं, कर पाते हैं, रिसर्च बताती है, इन देयर करियर्स, इन देयर प्रोफेशंस। अच्छा, सो ये चीज तो हमने समझ ली कि अच्छा, हमें ब्रॉडन करने की जरूरत है, हमें थोड़ा वसी करने की जरूरत है दायरा, कि साइंस के दायरे में क्या क्या आता है, व्हाट काउंट्स एज साइंस, वी नीड टू ब्रॉडन इट। इसको कैसे ब्रॉडन करना है, लेकिन कैसे करें? अच्छा, ये तस्वीर मेरे सामने जो है, इस पे जरा नजर दोहराएं। ये 3 बड़े मजे की स्लाइड्स हैं और ये पाकिस्तान में है। कोई गेस कर सकता है कि ये स्लाइड्स कहाँ पे हैं? फिर मैं आपको बताऊंगी कि इन स्लाइड्स में मजेदार चीज क्या है। Anyone who would like to guess? Magnify Science, magnificent science, Magnify Science Center, बिल्कुल, it is rather magnificent. Thank you Asma, you're right. लम्स में नहीं है, सॉरी, बट लम्स भी शायद एक दिन ये स्लाइड्स बना ले। लेकिन सारा का जवाब मुझे बड़ा मजेदार लगा है। सारा को लगा है कि शायद ये वंडरलैंड है, कोई 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 वंडरलैंड में से झूले वूले होते हैं,
लेकिन एक्चुअली ये एक साइंस म्यूजियम के अंदर है ये स्लाइड्स। ये साइंस म्यूजियम जो लंदन है उसमें भी ये स्लाइड्स हैं, एग्जैक्टली ऐसी हैं। और ये कराची में जो आपका बहुत खूबसूरत सा बड़ा सा मैग्नीफाई साइंस म्यूजियम है उधर भी हैं। मुझे कोई बताएगा इन स्लाइड्स को देख के कि जब लोग म्यूजियम में जाते होंगे तो ये स्लाइड्स पे वो क्या करते होंगे? ये 3 स्लाइड्स हैं, व्हाट डू यू थिंक दे डू? एनीवन वुड लाइक टू मे बी टाइप अ फ्यू लाइंस एंड एक्सप्लेन के अगर आप इन स्लाइड्स के सामने खड़ी होती तो आप क्या करती? अस्मा कह रही है एक्सपीरियंस फ्रिक्शन, नगमाना कह रही है हैव फन, ऑब्वियसली यू विल हैव फन, स्लाइड ऑन देम, ढ एग्जैक्टली। आप क्या करेंगी कि आप ये तीनों स्लाइड लेंगे, है ना? आप ये लकड़ी वाली, ये फिर ग्रीन से कलर की कोई घास वाली स्लाइड है और फिर एक और स्लाइड है, तीनों लेंगे। सो आप ऊपर चढ़ेंगे, एक एक करके स्लाइड लेंगे, तीनों स्लाइड लेंगे ना बारी बारी। और फिर आप क्या करेंगे? आप कंपैरिजन करेंगे कि आप सबसे ज्यादा तेज, सबसे ज्यादा जल्दी कौन सी स्लाइड से नीचे आई। डू यू नो कि ये सारा प्रोसेस क्या है? स्लाइड पे चढ़ने से पहले आप एक अंदाजा लगाएंगी कि कौन सी स्लाइड सबसे ज्यादा तेज है। दैट्स कॉल्ड क्रिएटिंग अ हाइपोथेसिस। यही साइंसदान करते हैं, उनके दिमाग में एक सवाल होता है, वो अंदाजा लगाते हैं एक्सपेरिमेंट करने से पहले। फिर वो क्या करते हैं? वो एक्सपेरिमेंट करते हैं, एक्सपेरिमेंट करके उनको कंक्लूजन या रिजल्ट मिल जाता है, कभी कभी नहीं भी मिलता, फिर बार बार एक्सपेरिमेंट्स करने पड़ते हैं। एंड दैट्स एग्जैक्टली व्हाट पीपल विल डू जब वो ये 3 स्लाइड्स देखेंगे। तो जो म्यूजियम में लोग आ रहे हैं वो क्या कर रहे हैं कि वो इन तीनों स्लाइड्स को देख के अंदाजा लगा रहे हैं, टेस्ट कर रहे हैं और एक कंक्लूजन ड्रॉ कर रहे हैं। दे आर कंप्लीटिंग दैट होल प्रोसेस ऑफ साइंस इंक्वायरी व्हाइल हैविंग फन एंड विदाउट इवन नोइंग दैट दे आर डूइंग साइंस। हमेशा डंडा पकड़ के किसी लैब में जाके बंसन बर्नर को देख के ही साइंस नहीं होती है। साइंस खेल खेल में भी हो सकती है, एक म्यूजियम में भी हो सकती है। और बगैर ये समझे कि हम साइंस कर रहे हैं, हम बच्चों को साइंस करवा सकते हैं। साइंस के प्रोसेस और सवाल ढूंढने के प्रोसेस के जरिए गुजार सकते हैं कि वो सवाल से जवाब ढूंढने का जो प्रोसेस है, वी कैन टेक देम थ्रू दैट प्रोसेस थ्रू प्ले while having fun and without using those very traditional ways कि ये ही साइंस है, ऐसे ही साइंस होती है और यहीं पे होती है। सो अब मैं आपसे एक चीज चाहूंगी कि सब बड़ी ईमानदारी से, मुझे आपकी वीडियोस नहीं नजर आ रही, लेकिन प्लीज एक सेकंड के लिए अपनी आंखें बंद कर लें। सोना नहीं है आपने, प्लीज मेरे साथ रहना है, अभी वेबिनार बाकी है। आपने सिर्फ ये करना है कि आपने आंखें बंद करके एक साइंसदान को इमेजिन करना है। इमेजिन अ साइंटिस्ट एंड आई वांट यू टू टेल मी इन द चैट बॉक्स कि ये साइंटिस्ट का हुलिया क्या है। बाल कैसे हैं, नाखून कैसे हैं, कपड़े कैसे हैं, चेहरे पे तासुरात कैसे हैं। एंड प्लीज बी वेरी ऑनेस्ट, पहली जो इमेज आ रही है ना दिमाग में वो बतानी है आपने। कहाँ खड़ी हैं या खड़े हैं, जगह कैसी है, व्हाट आर दे डूइंग, व्हाट आर दे वेयरिंग, हाउ डू दे लुक। एंड ऑब्वियसली आंखें खोल के मुझे टाइप करके जरा बताएं कि आपके दिमाग में पहली तस्वीर क्या आई। सो यू कैन ओपन योर आईज एंड शेयर। आई इमेजिन माई सेल्फ इन लैब एक्सपेरिमेंट विद माइस, कोमल कह रही हैं। ओके कोमल, तो लैब थी, एक्सपेरिमेंट हो रहा था चूहों के साथ, जबरदस्त, कोमल कर रही हैं। आयशा कह रही हैं आइंस्टाइन नजर आए। हारून कह रहे हैं लॉन्ग हेयर एंड बियर्ड, टेंस फेस, ओ गॉड, टेंशन में रहते हैं साइंसदान। सारा कह रही है मेरी शक्ल नजर आई। सारा थैंक यू सो मच। वैसे मैं साइंसदान नहीं हूँ, मैं एक साइंस कम्युनिकेटर हूँ, एक स्टेम एजुकेटर हूँ, बट थैंक यू। अच्छा, महम कह रही हैं वेरी डल बोरिंग ओल्ड मैन इन वाइट कोट। बशीर कह रहे हैं अ पर्सन विद ग्रे बियर्ड इन लैब। फिजा कह रही हैं डॉक्टर झटका इन मोटू पतलू। ये कौन है? दिस इज प्रॉब्ली सम प्रोग्राम जहाँ पे ये डॉक्टर पाए जाते हैं। Bald guy with glasses and coat. Mendel. Oh, that's a very important scientist. Darwin नजर आए लॉन्ग बियर्ड में, अरसलान को, नगमाना को। Oh, that's so sweet. नगमाना को अपने बेटे नजर आए। How old is your son, नगमाना? In a white lab coat. Lab coat तो होना है लाजमी, गॉगल्स भी हैं। न्यूटन नजर आए with curly hair and dirty nails. What an important detail. हाजरा कह रही है कि नाखून उनके गंदे हैं। अस्मा को बंसन बर्नर नजर आया। नो साइंटिस्ट, डायरेक्ट बंसन बर्नर। सादिया को व्हाइट पर्ल कासल वेयर कलर्स कैन बी एडेड। दैट्स रियली ऑसम सादिया।
फरीदा को एक इंसान नजर आए जिन्होंने गॉगल्स, लैब कोट पहने हैं, लैब में है, कर्ली बाल हैं, आइंस्टाइन, रफ हेयर, व्हाइट लैब कोट, ओल्ड मैन, लॉन्ग बियर्ड, एल्डर मैन, माय सुपरवाइजर, फ्यूल सेल लैब, 30 डूइंग PhD, ग्लासेस। ओके, अच्छा, तो जबरदस्त। अब ये तो समझ आ गया कि जब हम साइंसदान को इमेजिन करते हैं तो ज्यादातर लोग, ये जो आपने अभी तासुरात और इमेजेस सुने, ये नजर आते हैं। ऐसे लोग नहीं नजर आते हमें, है ना? हमें खवातीन नहीं अक्सर नजर आती, हमें बच्चे नहीं नजर आते, हमें रंग नहीं नजर आते, हमें खूबसूरत लोग नहीं नजर आते, हमें साफ सुथरे लोग नहीं नजर आते। आपकी तरह जब मैं किसी भी स्कूल में, क्लासरूम में, एंड फॉर द लास्ट 15 years आई बीन गोइंग टू क्लासरूम्स ऑन अ डेली बेसिस, तो बच्चों से हम पूछते हैं तो वो भी यही कहते हैं, बूढ़े हैं, गंदे हैं, नहाते नहीं हैं, बहुत पेचीदा हैं, बहुत ही डल हैं। तो इसलिए हमने क्या किया कि हमने साइंस कम्युनिकेशन का अंदाज बदला और हमने सोचा कि बच्चों को मिलवाया जाए डिफरेंट साइंसदानों से, क्योंकि सारे साइंसदान ऐसे थोड़ी होते हैं। दैट्स अ स्टीरियोटाइप। साइंसदान सारा कुरैशी जैसे, नरगिस मवाल वाला जैसे, तस्नीम जहरा जैसे भी होते हैं। एंड दिस इज आवर पोस्टर सीरीज, जो कि ये बैरियर, ये स्टीरियोटाइप को तोड़ना चाहती है, क्योंकि इफ दे कैन सी इट दे कैन बी इट। लड़कियां अगर देखेंगी नहीं अपने आप को तो फिर कैसे साइंसदान बनेंगी? तो दैट्स अनदर वे ऑफ कम्युनिकेटिंग साइंस यूजिंग दीज पोस्टर्स। एंड इसके लिए हमें ज़ाहिर है आर्टिस्ट के साथ कोलैबोरेट करना पड़ा, क्योंकि मुझे तो कोई आर्ट आता नहीं, तो आर्टिस्ट को बुलाना पड़ा और उन्होंने ये खूबसूरत पोस्टर्स बनाए। अब मिलिए ज़रा हमारी 12 साल की साइंस इंथुजियास्ट गुलरुख से। गुलरुख भी आप देख रहे हैं कि कितनी मज़ेदार है। एक तो ये पाकिस्तानी है, शलवार कमीज पहनी हुई है। जरूरी नहीं कि पाकिस्तान में सब लोग शलवार कमीज ही पहने, दे कैन वेयर व्हाटएवर दे लाइक, बट द पॉइंट इज कि शी लुक्स वेरी, जैसे कि ज्यादातर लोग पाकिस्तान में होते हैं। शी इज वेयरिंग समथिंग जो कि पाकिस्तान का एक ज्यादातर बच्चे या ज्यादातर लोग इस तरह के कपड़े पहन रहे होते हैं। तो आपको वो वाले कैरेक्टर्स नहीं नजर आ रहे जो कहीं बाहर से हैं, उनके स्किन का कलर, उनके कपड़ों का कलर, उनके बालों के कलर इस तरह के नहीं है कि ये कहीं और मुल्क में रहते हैं। और आप देख रहे हैं कि गुलरुख जिस किचन में बैठ के साइंस कर रही हैं, ये भी बहुत एक टिपिकल सा किचन है जो पाकिस्तान में हमें नजर आता है। ये हमारी एक किताब की कैरेक्टर हैं और ये ब्रॉडन कर रही हैं कि हु काउंट्स एज अ साइंटिस्ट। क्योंकि देखिए, ये 12 साल की एक बच्ची, 6 साल की एक बच्ची या 40 साल की एक औरत भी साइंसदान हो सकती है। और अभी हमें इन पोस्टर्स में और इन किताबों में और लोगों को डालने की जरूरत है। यहाँ आपको अरशद नदीम नजर आ रहे हैं जिन्होंने भी हाल ही में गोल्ड मेडल जीता है। अब ये भी साइंस को इस्तेमाल करते हैं। इनको न्यूटन के शायद बहुत बड़े बड़े लॉज याद ना हो, लेकिन जब ये जैवलिन थ्रो करते हैं तो इन्हें भी साइंस इस्तेमाल करनी पड़ती है और इन्हें भी उसकी नॉलेज है। डॉक्टर अब्दुल सलाम, आपको पता ही है कि वो हमारे पाकिस्तान से पहले और वाहिद नोबेल प्राइज विनर हैं साइंस की फील्ड में। और बीच में हमने एक पोस्टर बनाया है मोइज अहमद खान, जो कि मच्छरों की जीन्स को जो है वो अल्टर कर रहे हैं ताकि मलेरिया को फाइट कर सकें। एंड ही इज अ यंग पर्सन, ही इज स्टिल अलाइव। तो ऐसे लोग भी होने चाहिए ना आपके पोस्टर्स में, जो अभी जिंदा हैं, मर नहीं गए हैं। सारे बूढ़े लोग तो साइंस नहीं कर रहे होते, यंग लोग भी साइंस कर रहे हैं। और डिफरेंट रिलीजियस ग्रुप से लोगों का होना, पीपल विद डिफरेंट एबिलिटीज, उनका इन पोस्टर्स में होना जरूरी है। इसलिए ये वर्क इन प्रोग्रेस है। अभी हम इनमें और लोगों को डालेंगे, पीपल विद डिफरेंट एबिलिटीज, पीपल फ्रॉम डिफरेंट रिलीजियस बैकग्राउंड्स, ताकि हमारे बच्चे, डिफरेंट कम्युनिटीज के बच्चे अपने जैसे लोगों को देख सकें कि हाँ, ये साइंसदान है तो हम भी हो सकते हैं। एंड दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन वी कम्युनिकेट साइंस, टू मेक श्योर कि हमारी साइंस कम्युनिकेशन में इंक्लूसिव अप्रोच है और डाइवर्सिटी रिफ्लेक्ट हो रही है। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम। हमारे निज़ाम शमसी में मुख्तलिफ किस्म के ऑब्जेक्ट्स हैं। सूरज भी है, सैयारे भी हैं, चांद भी हैं। ये मेरे पीछे ये तस्वीर है एक खूबसूरत एस्टेरॉयड की। इसका नाम है एरोस। सॉरी, ये देखिए, एक सेकेंड।
अच्छा, तो एक वीडियो यहाँ पे मैंने प्ले नहीं की क्योंकि टाइम थोड़ा है, लेकिन मैं उसके बारे में आपको जल्दी से बता देती हूँ और आप ज़रूर उसको प्लीज़ गूगल या यूट्यूब पे सर्च कीजिएगा। सो साइंस फ्यूज़ ने एक बहुत अच्छी कोलैबोरेशन की कायनात स्टूडियोज़ के साथ ऑन अ प्रोजेक्ट कॉल्ड कायनात किड्स। इसके स्पेलिंग कुछ इस तरह है, मैं चैट बॉक्स में टाइप कर देती हूँ, आप प्लीज़ जाकर KAINAAT एंड देन किड्स इसे ज़रा सर्च कीजिएगा जब वेबिनार ख़त्म हो जाए। कायनात किड्स जो है ये एक छोटा सा प्रोजेक्ट है जिसमें आप देखेंगे कि हम उर्दू ज़ुबान में एनिमेशंस और लाइव होस्ट के इस्तेमाल से एस्ट्रोनॉमी की मालूमात बच्चों तक पहुंचाते हैं। सो इसका जो सीज़न 1 है उसमें 10 एपिसोड्स हैं। उसमें हम डिफरेंट चीज़ों के बारे में बात करते हैं कि कायनात इतनी बड़ी क्यों है और जो सियारे हैं वो किस किस तरह के हैं और भी बहुत सारी बातें। सो इसमें आप देखेंगे कि I would like you to, when you watch these episodes, to reflect a little bit on कि इन्होंने ज़ुबान हमने कैसे इस्तेमाल की। इसमें तीन होस्ट हैं, एक तो मैं हूँ, फिर एक डॉक्टर सलमान हमीद हैं और एक रोशान बुखारी हैं। और जब आप देखेंगे कि डॉक्टर सलमान में और रोशान जब इन वीडियोस का हम जब हम इन वीडियोस का स्क्रिप्ट लिखते थे तो हम सोचते थे कि हम किसको एड्रेस कर रहे हैं, हम पाकिस्तानी ऑडियंस को एड्रेस कर रहे हैं, इसलिए उर्दू में हम बात करते हैं। फिर जब हम बात करते हैं कि दुनिया ज़मीन गोल है तो हम एक आटे का पेड़ा ले लेते हैं और किचन में खड़े होकर रोशान एक आटे का पेड़ा जो है उसको गोल बनाते हैं और फिर ये सवाल पूछते हैं कि क्या दुनिया गोल है। अब हम आटे का पेड़ा इसलिए लेते हैं क्योंकि ये एक बहुत टिपिकल चीज़ है जो हमारे किचन में हमारे व्हेन वी आर ग्रोइंग अप हम इन चीज़ों को देख रहे होते हैं। अब फ्रांस में भी जो एस्ट्रोनॉमी है वो बदल नहीं जाएगी। पानी का फॉर्मूला जो है, मैं अक्सर लोगों को ये मिसाल देती हूँ, पानी का फॉर्मूला पाकिस्तान में भी वही है, पेरिस में भी वही है, वो बदल नहीं जाता। मगर साइंस किस तरह से कम्युनिकेट की जाती है, किस तरह से बताई जाती है, वो बदलना अंदाज बहुत ज़रूरी है। उसको पाकिस्तानी ऑडियंस के लिए कल्चरली रेलेवेंट बनाना, बच्चों की जो हमारे बच्चे हैं उनकी एनवायरनमेंट, उनकी डेली लाइफ कैसी है उससे जोड़ना बहुत ज़रूरी है। और ये मैं नहीं कह रही, ये रिसर्च बताती है कि अगर आप साइंस को पर्सनलाइज और लोकलाइज करेंगे तो फिर बच्चे समझेंगे कि हाँ ये मेरे लिए भी है, इसकी कुछ अहमियत है, एंड दैट्स वाई आई शुड इंगेज विद साइंस, वो ज़्यादा इंटरेस्ट लेंगे। अब इन्हीं बातों की ज़्यादा वजाहत हम करेंगे 2 दिन की हमारी 2 दिन की वर्कशॉप आ रही है लम्स एक्स के साथ। सो साइंस फ्यूज और लम्स एक्स ने मिलकर एक 2 दिन की वर्कशॉप जो है वो डिज़ाइन की है। इट्स कॉल्ड मास्टरिंग साइंस कम्युनिकेशन। इसमें हम खास तौर पे 3 चीज़ों के बारे में बात करेंगे। साइंस कैपिटल टीचिंग अप्रोच, मैंने जैसे शुरू में जिक्र किया, साइंस सरमाया ये एक रिलेटिवली न्यू कॉन्सेप्ट है, ये एक रिसर्च बेस्ड कॉन्सेप्ट है जो बताता है कि साइंस सरमाया बनता कैसे है, क्या वो फैक्टर्स हैं जो कंट्रीब्यूट करते हैं किसी का साइंस सरमाया बढ़ाने या घटाने में। और घटाना तो हम बिल्कुल नहीं चाहते, हम बढ़ाना चाहते हैं, क्योंकि जिनका साइंस सरमाया ज्यादा होता है दे आर मोर लाइकली टू परस्यू स्टेम करियर्स एंड स्टेम एजुकेशन। और ये सवाल एजुकेटर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जानना कि आखिर आप अपने बच्चों की स्टेम एस्पिरेशंस कैसे बढ़ा सकते हैं। दैट्स समथिंग स्कूल्स वांट टू नो, कम्युनिटीज वांट टू नो, पेरेंट्स वांट टू नो, टीचर्स वांट टू नो। एंड व्हेन यू एज टीचर्स या एज साइंस कम्युनिकेटर्स नो कि साइंस कैपिटल की तहकीक क्या बताती है और इसकी एक टीचिंग अप्रोच होती है, तो फिर आप उसको अपने काम में इस्तेमाल कर सकते हैं, नो मैटर व्हाट करिकुलम यू आर टीचिंग। इट डजंट मैटर कि आप ओ लेवल्स, ए लेवल्स, कैम्ब्रिज, मैट्रिक सिस्टम क्या आप कर रहे हैं। इसकी खूबसूरती ये है कि ये टेक्निक, ये अप्रोच हर करिकुलम के साथ अप्लाई हो सकती है। दूसरी चीज जो हम इस वर्कशॉप में एक्सप्लोर करेंगे वो है साइंस इंक्वायरी के स्किल्स। ये स्किल्स नेशनल करिकुलम का हिस्सा हैं पाकिस्तान में भी, लेकिन इन पे स्कूलों में फोकस नहीं किया जा सकता, नहीं किया जाता। लेकिन इन पे कैसे फोकस करना है, साइंस इंक्वायरी होती क्या है, इसकी टाइप्स क्या होती हैं, ये साइंस इंक्वायरी स्किल्स बच्चों को कैसे साइंस की क्लासरूम में आपने सिखाने हैं, ये हम इस कोर्स में सीखेंगे। और हम सिर्फ इन चीज़ों के बारे में बातें नहीं करेंगे, वेबिनार में तो जाहिर है मैं ज़्यादा बात कर रही हूँ, हम अपने कोर्स के अंदर एक्चुअल एक्सपेरिमेंट्स कर रहे होंगे लाइव। सो मैं अपनी टेबल पे कुछ प्रॉप्स, कुछ मटेरियल्स लेके आऊंगी, आप भी अपने घर पे वो सामान लेकर बैठेंगे और हम लाइव एक्सपेरिमेंट्स करेंगे, और वो एक्टिविटीज आप जाकर फिर अपने क्लासरूम में रेप्लिकेट कर सकते हैं, या किसी म्यूजियम में, या किसी फेस्टिवल में, या इवन घर पर। बाय द वे हम लोग आइसक्रीम भी बना रहे होंगे, सो इट्स गोइंग टू बी अ लॉट ऑफ फन। इसके अलावा जो लास्ट चीज है कि कहानियों के जरिए साइंस को कैसे पहुंचाना है बच्चों तक, बड़ों तक, ये भी हम सीखेंगे।
और ये कुछ टूल्स हैं जो एक साइंस कम्युनिकेटर के बैग में होने ही चाहिए, जो कि आपको ट्रेनिंग के बाद मिलेंगे। उसमें हमारी एक किताब है गुलरुख साइंस एडवेंचर, मैंने गुलरुख का जिक्र किया, उसकी एक किताब है जो हमने पब्लिश की है जिसका नाम है किचन की साइंस। ये इसकी पहली वॉल्यूम है इन दिस सीरीज, और इसमें 4 मजेदार एक्सपेरिमेंट्स हैं जो किचन में किए जा सकते हैं। एंड इसका खास तौर पे मकसद है ज्यादा लड़कियों को साइंस की तरफ रागिब करना, बट ऑब्वियसली लड़कों को भी किचन में जाना मना नहीं है। अच्छा, इसके अलावा आपको पोस्टर भी मिलेगा हमारा साइंस फ्यूज की जो सीरीज है रिमार्केबल वुमेन इन स्टेम, उसमें से यहाँ पे आप मैरी क्यूरी का पोस्टर देख रहे हैं, और कुछ गुलरुख की किताब की तस्वीर हैं, और एक डिजिटल गाइड बुक भी मिलेगी जिसके अंदर जो तमाम टूल्स और रिसर्च और एक्टिविटीज हम वर्कशॉप में एक्सप्लोर करेंगे उन सब के बारे में तफसीलात होंगी, ताकि आप बाद में भी इन चीज़ों को एक्सप्लोर कर सकें। अब मैं आपको जल्दी से बता देती हूँ बिफोर द टाइम एंड्स 1 मिनट साइंस चैलेंज के बारे में। सो दिस इज द लास्ट थिंग, इसके बाद आप प्लीज मेरे से सवालात पूछें। आज हम एक बहुत मज़ेदार चैलेंज लॉन्च करने जा रहे हैं, और इस चैलेंज में अच्छा करने के लिए आई थिंक द 2-day वर्कशॉप विल रियली हेल्प यू, क्योंकि उस 2 दिन की वर्कशॉप के बाद हमें लगता है कि आप बहुत कॉन्फिडेंट साइंस कम्युनिकेटर्स बन जाएंगे। ये चैलेंज कुछ इस तरह है कि आपने कोई भी साइंस की रिसर्च या कोई भी साइंस का कॉन्सेप्ट जो आपको पसंद है लेना है, और उसके ऊपर एक मजेदार किस्म की 1 मिनट की वीडियो बनानी है। वीडियो में आप बात कर रहे हो, विजुअल्स हो या कोई डेमोन्स्ट्रेशन हो, साउंड हो या ना हो, बस ये हो कि उस वीडियो के जरिए वो साइंस की जो बात आप करना चाह रहे हैं वो आसानी से, खूबसूरती से लोगों को समझ आ जाए। जब हमें एंट्रीज मिलेंगी तो हम 3 विनर्स सेलेक्ट करेंगे, एक को 5000 रुपीज का इनाम भी मिलेगा, बाकी 2 विनर्स को हमारी पब्लिकेशंस और पोस्टर्स मिलेंगे। एंड इसके बारे में ज़्यादा डिटेल्स जो हैं वो आप साइंस फ्यूज के इंस्टाग्राम पेज पे आज रात 9 बजे ज़रूर देखिएगा। साइंस फ्यूज इज स्पेल्ड एज साइंस एंड देन फ्यूज के स्पेलिंग FUSE। साइंस के स्पेलिंग तो सबको ही आते होते हैं, तो यहाँ पे जो है आप ज़रूर इसमें पार्टिसिपेट करें। लेकिन अगर आप हमारी वर्कशॉप जो है वो हो रही है 31st एंड 1st को, सो 31st अगस्त एंड 1st सितंबर, 2 दिन की ये वर्कशॉप है। और अब मैं चाहूंगी कि टाइम थोड़ा है, लेकिन प्लीज आप लोग अगर तो जस्ट पॉप देम इन द चैट बॉक्स एंड आई वुड लव टू आंसर देम, एंड आई कैन स्टे फॉर अ कपल ऑफ एक्स्ट्रा मिनट्स अगर आप लोग चाहें, बट प्लीज डू टाइप योर क्वेश्चंस इन द चैट बॉक्स एंड मे बी आई कैन आंसर देम, और मैं कोई किसी बात पे वजाहत कर सकती हूँ अगर आपके कोई सवाल है। हाउ टू सबमिट, अच्छा एक सेकेंड, फहमीदा क्या सबमिट करने का पूछ रही हैं आप, थोड़ा सा वजाहत कीजिएगा। हाँ जी फहमीदा, ज़बरदस्त सवाल है आपका। तो आज रात 9 बजे साइंस फ्यूज के इंस्टाग्राम पे आपने जाना है, सो इंस्टाग्राम पे जाके साइंस फ्यूज सर्च करें, आपको हम नज़र आ जाएंगे। उधर आप देखेंगे आज रात 9 बजे लॉन्च हो जाएगा ये हमारा 1 मिनट साइंस चैलेंज। उसको कैसे करना है वो सारी डिटेल्स वहाँ होंगी। सो बेसिकली आपने एक सबमिशन फॉर्म है, उसके अंदर अपनी डिटेल्स डालेंगे और जो वीडियो बनाई है वो उसका लिंक अपलोड कर देंगे। दैट्स हाउ यू विल सबमिट। वर्कशॉप की टाइमिंग, उमम या आप इसके बारे में बताना चाहेंगी? थैंक यू। फहद, आप स्पेसिफिक फॉर केमिस्ट्री पूछ रहे हैं 1 मिनट साइंस चैलेंज, अगर तो वो किसी भी साइंस की बात हो सकती है, कोई भी फील्ड हो, मरीन बायोलॉजी हो या बेशक बिरयानी की साइंस हो, चाय की साइंस हो, पौधों की साइंस हो, डजंट हैव टू बी केमिस्ट्री। कोई और सवाल? खासतौर पे अगर आप लोगों का वर्कशॉप के बारे में कोई सवाल है तो ज़रूर करें। 2 दिन की जो हमारी वर्कशॉप है मास्टरिंग साइंस कम्युनिकेशन, उसमें अब थोड़े दिन रह गए हैं। 10 a.m. to 3 p.m. हमारी वर्कशॉप है, 2 days की 5 hours each day. मैंने आप लोगों को लिंक भेजा है in the chat box as well, so you can go through that link and sign up to learn more about it. और उसके अंदर like objectives और क्या हो रहा होगा वर्कशॉप के अंदर, all of those details are mentioned. Please feel free to go over that, and you can always like send us a message if you have any queries about that on our Instagram, Facebook channels. And yeah, we hope to see some of you, if not all, in as part of the workshop as well. Yes, the timing is 10 a.m. to 3 p.m.
तो 10 hours in total, हर दिन 5 घंटे, बीच में breaks होंगी, so आप थकेंगे नहीं. But it's going to be a very intensive workshop, और उसमें ऐसी एक्टिविटीज हम कर रहे होंगे जो जाकर फिर आप अपनी क्लासरूम्स में डायरेक्टली रेप्लिकेट कर सकती हैं या कर सकते हैं. थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग. बहुत शुक्रिया फहमीदा. आज हमारे पास वक्त मुख्तसर था. वर्कशॉप में होपफुली वी विल हैव अ लॉट मोर टाइम, तो हम इन्हीं चीज़ों में ज़्यादा डीप डाइव कर रहे होंगे. थैंक यू नगमाना, बहुत शुक्रिया. थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग. एनी अदर क्वेश्चंस? अगर किसी के दिमाग में कोई भी सवाल आ रहा है, इंस्टा का लिंक बिल्कुल मैं शेयर कर देती हूँ. उमम ने शेयर किया है, क्या कहते हैं, लम्स एक्स के जो सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, तो आप ज़रूर फॉलो करें लम्स एक्स को. वहाँ पे और भी बहुत सारे कोर्सेज हैं. और साइंस फ्यूज़ का बहुत सिंपल है, instagram.com/sciencefuse. एंड हम लोग फेसबुक पे भी, ट्विटर पे भी, हर जगह साइंस फ्यूज़ के नाम से हैं. सो ये स्पेलिंग है. अगर आप साइंस फ्यूज़ सर्च करेंगे ट्विटर पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, आपको हम नज़र आ जाएंगे. ओके, मेरा लिंक्डइन, आई एम नॉट श्योर मैं कैसे शेयर करूं, बट या यू कैन लुक मी अप, लाला रुख, या दैट्स माय नेम. आप साइंस फ्यूज की इंस्टाग्राम पे ही देखिएगा. अगर हम हायरिंग कर रहे होंगे तो आपको नजर आ जाएगा कि साइंस फ्यूज इज हायरिंग. वी आर गोइंग टू बी हायरिंग in Lahore, so if you're interested in becoming a part of the team, you can always keep an eye on our socials. Thank you everyone for joining and being so interactive in the webinar. Please visit us on our websites and reach out to Lala on LinkedIn or however you feel comfortable. And we look forward to seeing you in the course. And please feedback form fill kar dein, so it will help us improve our experiences, future experiences of conducting these webinars. And it's not going to take very long. It's a very short survey. So I would be really grateful if you can fill that out. And have a wonderful weekend. Thank you so much, Lala, for being here and facilitating this wonderful webinar. I'm glad to see people had a great time and were engaged. Thank you, Sarah, for sharing your video and being engaged throughout the session, and everyone else. And yes, we look forward to seeing you in other courses, in Lala's workshop, and just in other future webinars as well. Thank you. बहुत शुक्रिया उमम. Thank you for all the support and thank you everyone for joining. फिर मिलेंगे.